तो चलिए, इस वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। Vellore parliamentary constituency of Tamil Nadu was rescinded by the commission as it was found that there was a systematic design to induce the voters and hence vitiated the electoral process. The first phase of elections encompassed 91 parliamentary constituencies in 20 states and union territories. Of these, 10 states completed fully their elections by the first phase itself. By today, that's the second phase of election. Polling has concluded completely in 14 states and union territories. A total of 22 states and union territories will conclude their elections completely by the third phase of election, scheduled to be on April 23rd. So, when the 13 states and union territories are yet to begin their polling. Till now, out of the 7 phases, notification have been issued for 6 phases. Notification for the last and 7th phase of elections will be issued on April 22nd, 2019. The first phase of election, the opening or the premiere as you may call it, witnessed enthusiastic voting across 20 states and union territories that went to poll on April 11th, 2019. The polling percentage across the country in the first phase was 69.4%. The first phase, while percentage of male voters to the male electorate was 68.01%. Similar percentage of female voters to female electorate works out to be 68.53%. It's very encouraging and it's in the indication of rising participation of women in the democratic process. The size of electorate for the second phase of poll held today stood at 15.8 crores. Of which women voters were about 7.8 crores, and the number of persons with disabilities stands to be 8.45 lakhs for the second phase. Today we conducted our elections from 1.76 lakh polling stations. Now an update on the assembly elections. All the notifications have been issued as far as elections to the state assemblies are concerned. Polling concluded completely in the first phase from the states of Andhra Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh. Odisha has 4 phases election, with the second phase concluding today simultaneously with the national elections. Now, several voters which are still in the queue waiting for their turn to vote. So we will be able to give only the tentative figures of the participation. However, the queue outside the polling booth, even now in some of the places, that signifies how people are enthusiastically participating in the electoral process. Now I'll like to give you snapshots of the 4 states which are in charge, and followed by me, all my colleagues will give you snapshots of their states, and finally. चलिए, अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर और आपको दिखाते हैं अलवर से कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह का शक्ति प्रदर्शन। उनके रोड शो में सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। अलवर में जितेंद्र सिंह ने रोड शो के जरिए अपना दम दिखाया। जहां तक नजर जाती है, कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ ही भीड़ नजर आती है। कांग्रेस जिंदाबाद और भंवर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद के शोर के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता। किसी उम्मीदवार के लिए जब प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम खुद रोड शो के लिए उतर आए, तो उम्मीदवार की शख्सियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। शक्ति शो से साफ हो जाता है कि आने वाले चुनाव में वो क्या गुल खिला सकता है। अलवर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले भंवर जितेंद्र सिंह पहले भी सांसद रहे हैं और अब की बार भी अलवर की जंग जीत लोकसभा पहुंचने का दम भर रहे हैं। नॉमिनेशन के लिए पत्नी और दोनों बेटियों के संग आए भंवर जितेंद्र सिंह ने पर्चा भरने के बाद कहा कि कोई शक नहीं कि अब की बार अलवर उन्हें ही सिराखों पर बिठाएगा। जनता चाहती है, जनता ने एक नारा दे दिया है, मैं हूं जितेंद्र सिंह। तो जनता अब जितेंद्र सिंह के रूप में चुनाव लड़ रही है। आप तो स्टार प्रचारक हैं, दूसरी सीटों की अगर बात करें प्रदेश की, क्या कुछ उम्मीद लेकर इस बार चल रहे हैं? क्या मिशन 25 का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से पूरा होने वाला है और मुझे कुछ और भी क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है और जो जनता के अंदर बहुत बड़ा जोश है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास है।
तेज मंडी गौशाला में पूजा अर्चना और गायों को खाना खिलाने के बाद पर्चा भरने आए भंवर जितेंद्र सिंह का जादू शहीद स्मारक से जगन्नाथ मंदिर तक निकले रोड शो में नजर आया, जिसमें सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन में हैवीवेट उम्मीदवारों का जादू यूं ही नजर आता है। देखना यह है कि भंवर जितेंद्र सिंह का यही जादू वोटिंग के दिन जनता के दिलो दिमाग पर सिर चढ़कर बोलता है या नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में भी महासमर का खुमार छाया हुआ है, जहां बीजेपी प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल के समर्थन में सभा हुई। समर्थन सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब बीजेपी की सरकार आती है तो राज्य का खजाना भरने लगता है और कांग्रेस की सरकार में खजाना खाली कैसे हो जाता है। जो गरीब के पास पैसा नहीं था, जो गरीब को अपना जेवर, जो गरीब को अपना घर गिरवी करना पड़ता था, खेत गिरवी करना पड़ता था, अब उसको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सरकार ने पूरा बोझ उसके कंधे पे लिया। आज उसको बंद करने का काम कर दिया है। अरे भाइयों, आज मैं देख रही थी तो जीवन रक्षक के जो आपकी दवाइयां थी उसको करने का बंद करने का काम हो गया। उसमें महानरेगा का पेमेंट मैं सुन रही हूं कि नहीं हुआ, या है कोई जिसको मिला है महानरेगा का पेमेंट मिला? पेंशन, कर्मचारियों को तनख्वाह। और मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि जो मेरे सामने दे रहे हूं तो ठेकेदारों का भुगतान भी शायद ही अब बंद हो गया है। जहां गौरव पथ को छोड़ा था वहीं के वहीं पड़ा रहा, जहां सड़कों को काम करके वहां छोड़ा था, जब सरकार गई वहीं के वहीं ठेकेदारों ने छोड़ के रख दिया है। क्योंकि समझ में नहीं आता है, हमारी सरकार आती है तो कितना भी कष्ट हो ईश्वर पैसा दे ही देता है, और इनकी सरकार आती है तो हर बार खजाना खाली कैसे मिल जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। खजाना खाली मिल ही जाता है। महासमर का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में मिशन 25 पर दावे बढ़ते जा रहे हैं। आज राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने सूबे की सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी यही दावा किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेगी। को झोली में हम राजस्थान के 25 के 25 सीटें लोग डाल रहे हैं, क्योंकि ये देखकर अशोक गहलोत बौखला गए हैं, कांग्रेस बौखला गई है। अब वो गाली गलौज पर आई है। मोदी जी को चोर कहते, सभी मोदी शेड्यूल यानी ओबीसी को चोर कहने लगे, पूरे जाति का अपमान कर रहे। अब राष्ट्रपति की जात पूछ रहे अशोक गहलोत, और जाति का उल्लेख करके राष्ट्रपति का ये करना संवैधानिक अपमान है। चुनाव आयोग को इसका दखल लेना चाहिए। और ये उनकी बौखलाहट, छटपटाहट बता रही है कि कैसे उनको उनके हाथ से सब निकल गया है, क्योंकि 25 सीटें अगर राजस्थान की बीजेपी के खाते में जाती है तो फिर अशोक गहलोत का वजूद क्या रहेगा। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अति आवश्यकता है और हर एक की निगाहें आज कांग्रेस पार्टी की ओर है, उसको पूरी मजबूती प्रदान करेंगे। और इन सब के आने से कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के हमारे सभी प्रत्याशियों को मजबूती प्रदान होगी और हम अपने मिशन 25 में सफल होंगे। पश्चिम बंगाल और यूपी 2019 में सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह दावा किया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ ममता बनर्जी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे। तो आपको लगता है मेन ऑपोजिशन पार्टी स्टेट में अब बीजेपी हो गई है? हम ऐसा कुछ नहीं मानते। ऑपोजिशन अभी हमारा स्टेट में देखो, असेंबली में उसका खाली 3 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। सपना देखना होता है, लेकिन सपना कबूल करने का मालूम होना चाहिए। उन्होंने सपना दिखाता है बड़ा बड़ा बात करके, झूठा बात करके, बहुत बड़ा बड़ा गंदा गंदा बात करके, लेकिन सपना देखने के लिए जो दिल चाहिए वो दिल उसका पास नहीं है। इसी के लिए बहुत आसानी है कहने का, मैं ये करेगा वो करेगा। दिस टाइम आई एम टेलिंग यू, बंगाल एंड यूपी विल बी द डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएगा।